Hello students. So in this lecture I will be teaching you 2.5 lesson which is Let's March written by Kailash Satyarthi. So I'll suggest you all to open your textbook while you are watching this video so that you can see where I'm reading, how I'm reading, and also very important which is make a note of the meanings that I will provide you. And as you know that there are lots of hard words there in the lesson. So when I'll tell you the meanings, you have to make a note of it. Okay, so let's begin. So this chapter, Let's March, it is written by Kailash Satyarthi. He is an Indian children's rights and education advocate and an activist against child labor. ठीक है, he is an Indian activist. ठीक है, he works for the rights and education of education of children, and he has founded बचपन बचाओ आंदोलन 1980 में फाउंड किया था एक आंदोलन उन्होंने, and also has acted to protect the rights of more than 83,000 children across 144 countries, है ना. तो इसी से हमें पता चलता है that he has done a great deed, है ना. So he has protect the rights of 83,000 children. Imagine कर सकते हो आप 144, not only in India itself but 144 countries across the globe में 144 countries के 83,000 बच्चों के rights को उन्होंने protect किया है. So it is a great work, है ना. So also, so that is why he has been honored with many awards including Nobel Peace Prize of 2014. Okay, he has been honored with a prestigious prize, है ना. Nobel Peace Prize is a prestigious award, so he has been awarded with that also. Now this chapter, last line which is mentioned in the introduction, which is he had addressed this speech on the eve of Nobel Prize distribution ceremony. Okay, so this chapter is about the speech which he has given while he was giving a speech on the prize distribution ceremony. Okay, so while he was receiving the Nobel Prize, and during that time he has given a speech, and that speech is this chapter is talking about. So there are three parts: part 1, part 2, and part 3. So let's begin with the part 1. Please make the note of the meanings which I'll provide you. Okay, so part 1: My dear children of the world, your majesties, your royal highness, excellencies, distinguished members of the Norwegian Nobel Committee, dear brother Tom Harkin, brothers and sisters, and my dear daughter Malala. Okay, this is how he has greeted, this is how he has started his speech. So he first greets all the children of the world. Okay, so as we know that he's an activist and does work for children, so first and foremost he has greeted the children of all over the world, and then he give respect to all the people, all the royal people, or all the people dignitaries who were present in the ceremony. Okay, so that is why he greets with great respect. See, he says your majesties. ठीक है, majesties means he gives respect. ठीक है, gives respect to the sovereignty and dignity of the people who were present there. Your royal highness, है ना. So your royal highness, it is a word, this is how we greet to the royal people, as we can say kings or any people who are rich or at a higher level. Okay, excellencies, distinguished members of the Norwegian Nobel Committee. Distinguished means famous people or very successful people of the Norwegian Nobel Committee. ठीक है, Norway is a country in Europe. ठीक है, so there to them also he greets, and also greets a brother. He has mentioned Tom Harkin and many brothers and sisters, and also he mentions about Malala. ठीक है, Malala, she is also a very famous person. You can also find it her on Google. She is a Pakistani activist for female education, and also she is the youngest Nobel Prize laureate. ठीक है, she's a young girl, very young girl, and from a very young age she has worked for the female education. ठीक है, पाकिस्तानी एक्टिविस्ट है दो, बट शी इज़ वेरी फेमस. शी हैज़ डन अ ग्रेट वर्क अक्रॉस द ग्लोब, एंड शी इज़ एन इंस्पिरेशन फॉर ऑल द गर्ल्स एंड ऑल द पीपल. शी इज़ एन इंस्पिरेशन. ओके, सो शी इज़ द यंगेस्ट नोबल प्राइज़ लॉरिएट. ठीक है, नोबल प्राइज़ मिलने वाली यंगेस्ट गर्ल है वो, and she has done a great work. You can just find her work and about her on the net. Okay, so
we can do that. So she is so Kailash Satyarthi is considering Malala as a daughter. So he says there in his greetings, my dear daughter Malala. Okay, so in the next paragraph, from this podium of peace and humanity, I am deeply honored to recite a mantra from the ancient texts of wisdom Vedas. This mantra carries a prayer, an aspiration, and a resolve that has the potential to liberate humanity from all man made crises. Okay, so here he's giving a speech, है ना? So he's standing on the podium, and he himself says, from this podium of peace and humanity, he is very honored, and he started his speech after greeting the people, after greeting the respected people. he he recites a mantra. Okay, he recites a mantra, which is there in the Veda. Okay, and this mantra is a prayer actually, and an aspiration. Aspiration means desire, है ना? And a resolve that has the potential. Okay, this mantra, this prayer which he is going to recite, or which he recites there and while standing on the podium, he says that the prayer itself has the potential means possibility or ability to liberate humanity from all man-made crises. Liberate humanity means free humanity from all the man-made difficulties. ठीक है, आप समझ रहे हो यहाँ पे? ही सेज कि ही स्टार्ट सम मंत्र स्टार्ट करते हैं, मंत्र से वो स्टार्ट करना चाहते हैं। ग्रीटिंग्स देने के बाद ही रिसाइट सम मंत्र जो वेदास में मेंशन किया गया है। ही ऑल्सो सेज कि मंत्र एक प्रेयर है एक्चुअली, एंड वो प्रेयर में इतनी पावर है कि वो प्रेयर ह्यूमैनिटी को फ्री कर सकती है, जो भी मैनमेड क्राइसिस है, मैनमेड डिफ़िकल्टीज़, मैनमेड जो डिफ़िकल्टीज़ है जो ह्यूमंस ने बनाई हैं, उसको ह्यूमैनिटी से फ्री कर सकती है। ओके, सॉरी, क्राइसिस से फ्री कर सकती है। ठीक है, सो दैट इज़ व्हाट ही टॉक्स अबाउट, that the prayer is very strong, and it can do a great thing which can, liberate humanity from the problems. The next paragraph, let's walk together in the pursuit of global progress. Not a single person should be left out or left behind in any corner of the world, from east to west, from south to north. ठीक है, he says now that let's walk together. ठीक है, this speech is actually not just a speech, he's sharing his experience here. ठीक है, so he tells us that let's walk together, हम साथ चलते हैं. In what? In the pursuit of global progress. Pursuit of global, pursuit means pursuing या फिर chase करते हैं, of global progress. नॉट अ सिंगल पर्सन, कोई भी एक पर्सन भी पीछे नहीं छूटना चाहिए. ईच एंड एवरी ह्यूमन अलॉन्ग द वर्ल्ड शुड वॉक टुगेदर. ठीक है, कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए, ईस्ट से वेस्ट हो या साउथ से नॉर्थ हो. फ्रॉम ऑल द पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड इट शुड बी कवर्ड, द पीपल शुड कवर, एंड द पीपल मस्ट वॉक टुगेदर. ठीक है, ही टॉक्स इन दिस पैराग्राफ अबाउट वॉकिंग टुगेदर. नेक्स्ट पैराग्राफ, in the next paragraph he says, let's speak together. Let our minds come together, learning from the experiences of our ancestors. Let us together create knowledge for all that benefits all. ठीक है, तो नाउ ही सेज अबाउट वॉकिंग टुगेदर सो दैट पीछे कोई भी इंसान दुनिया में पीछे ना रह जाए. सो एज वी ऑल नो, है ना, in our country also, if I give example of our country also, some people are rich, some people are some people are living in middle class, belong to a middle class family, and some people are poor. मतलब there's a difference between all these people, and some people are getting facilities, some people are lagging, some people are suffering. So here he says let's walk together, all the human beings, no one should be left behind. कोई भी पीछे नहीं रहना चाहिए, कहीं से भी हो, ईस्ट से वेस्ट से हो या साउथ से नॉर्थ तक हो, पूरा वर्ल्ड कवर होना चाहिए. लेट्स जस्ट वॉक टुगेदर. ठीक है, ग्लोबली प्रोग्रेस होने के लिए लेट्स वॉक टुगेदर, देयर शुड बी ग्लोबल प्रोग्रेस. ऑल्सो नेक्स्ट पैराग्राफ में लेट्स स्पीक टुगेदर में ही सेज कि लेट आवर माइंड्स कम टुगेदर. ठीक है, लेट आवर माइंड्स मीन्स लेट आवर थॉट्स कम टुगेदर, लेट अस थिंक लाइक वन. लर्न, एंड ही ऑल्सो मैंशंस कि हमारे जो एंसेस्टर्स हैं, एंसेस्टर्स मीन्स फोर फादर्स, उनके एक्सपीरियंसेस से हम सीखें कुछ.
ठीक है, every time your parents also tells you that you shouldn't do this or you shouldn't do that. They guide you in a right way. Sorry, the screen. Okay, here it is. Yes. So they guide you. So why they guide us? Because they have certain experiences. उन्होंने life जी है, so they have got certain experiences. So he also says that experiences matters. So experiences of our ancestors or experiences of our forefathers, let's just learn from those experiences and let us together, हम सब एक साथ knowledge create करते हैं उनके एक्सपीरियंसेस को से सीख के लेट्स जस्ट क्रिएट अ नॉलेज, एक नॉलेज बनाते हैं। और वो नॉलेज कैसा होना चाहिए जो सबको बेनिफिट दे, सबको। ऐसा नहीं है कि किसी को फ़ायदा हो, किसी को नुकसान हो, किसी के लिए अच्छा करे, किसी के लिए बुरा बुरा करे। नो, दिस नॉलेज वी शुड क्रिएट सच अ नॉलेज टुगेदर। ऐसा नहीं कि वो करना चाहता है, ही सेज कि द वर्ल्ड शुड कम टुगेदर, सब एक साथ सोचे एंड ऐसा एक नॉलेज बनाए जहाँ पे सबको बेनिफिट हो। Okay. Next, he says, I bow to my late parents, to my motherland, India, and to the Mother Earth. Okay, now he respects, he bow to my late parents. Late parents means late parents is आप समझ सकते हो that the parents are no more, so that is why late word is mentioned. ठीक है, so he gives tribute or he gives respect to his parents also, and also he says to my motherland India. Okay, there he, because he is an Indian, so he also didn't forget to respect his motherland. ठीक है, so he respects the country India and to the mother earth. Okay, next the earth. Okay, that is the mother, है ना, we respect the motherland and also the mother earth in which we live in which we can survive. And next is, with a warm heart, I recall how thousands of times I have been liberated. Each time I have freed a child from slavery. In the first smile of freedom, on their beautiful faces, I see the God smiling. ठीक है, now he has started the started sharing the experiences here. ठीक है, अब अभी तक जब जितना अब हमने पढ़ा उसमें इंट्रोडक्शन था, ग्रीटिंग्स था, एंड what he wants from the public or what he wants from the people who are listening to him, that is what we heard. Here he starts sharing the things actually which he has experienced. So he says he can recall thousands of times he was liberated. I've told you already before, liberate means freed. ठीक है, सो ही हैज़ फेल्ट फ्रीड, फ्री फील किया है उन्होंने, फ्रीडम फील किया है उन्होंने, कब? thousands of times. And when was these times, when what happened these thousands of times when he felt freed or when he felt like he got freedom, was when he freed a child from slavery. ठीक है, जब भी किसी बच्चे को स्लेवरी से बचाया था, स्लेवरी मतलब गुलामी से बचाया था, स्लेव जो बच्चे स्लेव्स होते हैं ना, जिनको जो बच्चे स्लेव्स होते हैं, जो काम करते हैं, छोटे छोटे बच्चे जो काम करते हैं, उनको जो स्लेवरी का काम करते हैं, किसी के अंडर काम कर रहे हैं, गुलाम हैं, सो उन बच्चों को जब उन्होंने उनकी गुलामी से बचाया था, तब उन्हें हमेशा फ्रीडम फील हुआ था, फ्रीड फील किया था, ही फेल्ट लिबरेटेड। ठीक है, यू अंडरस्टूड द वर्ड लिबरेटेड, फ्री फीलिंग ऑफ फ्रीडम। सो थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स उन्होंने एक्सपीरियंस किया, बिकॉज थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स जब भी उन्होंने एक एक बच्चे को स्लेवरी से फ्री किया, बचाया, तब उनकी जो फर्स्ट स्माइल ऑफ फ्रीडम थी, जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको जब गुलामी से आप निकालते हो, बाहर निकालते हो, तब उनके फेस में जो फ्रीडम जब उनके फेस में फ्रीडम की फील आई, एंड व्हेन दे स्माइल्ड on their beautiful faces the first smile of freedom, when he saw that, he felt like he is seeing the God smiling in front of him. ठीक है, ही इज सेइंग कि जब बच्चे हंस रहे थे, जब उनको मैंने उनकी स्लेवरी से निकाला, तब ही फेल्ट कि मेरे सामने भगवान स्माइल कर रहे हैं, गॉड इज स्माइलिंग, ही फेल्ट लाइक दैट, दिस इज व्हाट ही सेज हियर। ओके, next he says, I give the biggest credit of this honor to my movements, Kalu Kumar, Dhoom Das, and Adarsh Kishore from India, and Iqbal Masih from Pakistan, who made the supreme sacrifice for protecting the freedom and dignity of children. I humbly accept this award on behalf of all such martyrs, my fellow activists across the world, and my countrymen.
Okay, so here in this paragraph he says कि उसकी जो क्रेडिट है, जो सक्सेस है, एंड ये जो बच्चों को स्लेवरी से निकाला है, जो फ्रीडम उन्होंने दिया है, उन सब उनका क्रेडिट, बिगेस्ट क्रेडिट ऑल्सो वो किन को देना चाहते हैं? ये कालू कुमार, धूमदास, आदर्श किशोर, जो इंडिया, ये सारे जो इंडिया से हैं, एंड एक पाकिस्तान से भी था जो जिनका नाम था इकबाल मासी। इन सब ने काफ़ी ज़्यादा सैक्रिफाइसेस दिए थे, ठीक है, काफ़ी उन्होंने भी सहा था, काफ़ी सैक्रिफाइसेस दिए थे फॉर for giving these children for to get freedom and dignity of children, ठीक है, for protecting the freedom and dignity of children। बच्चों की आज़ादी को बचाने के लिए, बच्चों की सेल्फ रिस्पेक्ट को बचाने के लिए इन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया था। ऑल्सो ही सेज कि अवार्ड जब वो एक्सेप्ट कर रहे हैं तो वो इन सब मार्टियाज, ऑल सच मार्टियाज, फेलो एक्टिविस्ट, ओके, सो पीपल, ऑल सच मार्टियाज, मार्टियाज वर्ड व्हेन ही मेंशंस, ठीक है, द पीपल हु डाइड, द पीपल हु डाइड फॉर अ गुड कॉज, हम उन्हें बोलते हैं ना कि वो मर के भी जिंदा हैं, शहीद बोला जाता है हिंदी में। तो वैसे मार्टियाज वर्ड मेंशन किया है, मतलब द पीपल who were equally contributed in this thing, they died because of this, they died because for this cause, okay, so they had laid their lives for this big cause, that is why he, Kailash Satyarthi ji, mentions them as martyrs, ठीक है। So my fellow activists also, the activists who are now working along with him and across the world, जो पूरे वर्ल्ड में है, ऐसा नहीं है सिर्फ इंडिया से ही एक्टिविस्ट जुड़े हुए हैं, अक्रॉस द वर्ल्ड जो भी एक्टिविस्ट जुड़े हैं इनके चाइल्ड लेबर, अगेंस्ट चाइल्ड लेबर एक्टिविटीज़ के लिए, तो उन सब को ही रिमेंबर्स देयर एंड ऑल्सो टू ऑल द कंट्रीमैन, ठीक है। नेक्स्ट पैराग्राफ में ही सेज, okay, here I reached page number 79, second paragraph. So my journey from the great land of Lord Buddha, I know, I guess after uploading on YouTube it will get little unclear, so that is why I told you ki open the textbook and see open the textbook and just see where I'm reading. So if I'm reading, you can just see it in your textbook where I'm reading, and आप खुद भी read करके समझ जाओगे, and when you will listen you will understand it better, ठीक है। सो आई एम हियर ऑन पेज नंबर 79, सेकेंड पैराग्राफ, ओके, सो लिसन टू इट एंड ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड यू कैन सी देयर इफ द पिक्चर इज नॉट क्लियर ऑन यूट्यूब। So my journey from the great land of Lord Buddha, Guru Nanak and Mahatma Gandhi, India to Norway is a connect between the two centers of global peace and brotherhood, ancient and modern, ठीक है। He says कि उनकी जो जर्नी थी वो कहाँ से आई है? ग्रेट लैंड ऑफ लॉर्ड बुद्धा, ठीक है, गुरु नानक जी, महात्मा गांधी जी, ठीक है, इन सब की ये सारे ग्रेट पीपल ऑफ आवर कंट्री। सो वहाँ से इनकी जर्नी स्टार्ट हुई। ऑब्वियसली इंडिया की बात कर रहे हैं, इंडिया को मेंशन कर रहे हैं। सो ही सेज कि इंडिया से जब नॉर्वे आए हैं, दीज टू कंट्री, इंडिया से नॉर्वे का जो जर्नी था, इट इज़ अ कनेक्ट बिटवीन टू सेंटर्स ऑफ ग्लोबल पीस, ठीक है, ये कनेक्शन बनाता है, कनेक्शन जोड़ता है बिटवीन टू सेंटर्स ऑफ ग्लोबल पीस, ठीक है, एंड ब्रदरहुड, भाईचारा, एंशियंट एंड मॉडर्न, एंशियंट मतलब पुराना, मॉडर्न मीन्स नया। सो ही सेज दैट देयर इज अ कनेक्ट बिटवीन टू कंट्रीज, ठीक है। एंड नेक्स्ट ही सेज, फ्रेंड्स, the Nobel Committee has generously invited me to present a lecture. Let me just zoom in for you. Let's see if you can read it likewise. So, friends, the Nobel Committee has generously invited me to present a lecture. Respectfully, I am unable to do that because I am representing here the sound of silence, the cry of innocence, and the face of invisibility. I represent millions of those children who are left behind, and that's why I have kept an empty chair here as a reminder. Very important paragraph, okay? Very not only this paragraph, but this is a very interesting one to say. He says that, friends, the Nobel Committee, the committee who organized the prize distribution ceremony, ठीक है, तो उन कमेटी को ही सेज कि उन्होंने मुझे जनरसली इनवाइट तो किया कि मैं यहाँ पे आके एक लेक्चर प्रेजेंट करूँ, एक लेक्चर दूँ सबको। ही रिस्पेक्टफुली सेज कि मैं ये कर नहीं सकता हूँ, आई एम अनेबल टू डू दैट,
And he says, he gives the reason also, because he gives the reason. Understand these lines which I'll read. I'm representing why what he says कि क्यों मैं नहीं लेक्चर दे सकता, बिकॉज मैं यहाँ पे खड़ा होकर जो स्पीच दे रहा हूँ, मैं उनको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, किनको, द साउंड ऑफ साइलेंस को, द साउंड ऑफ साइलेंस। ओके, बोल्डेड लेटर्स में ये मेंशन किया चैप्टर में भी, द साउंड ऑफ साइलेंस मीन्स अनहर्ड प्ली ऑफ द डिप्राइव्ड, है ना। एज वी ऑल नो कि जो डिप्राइव्ड लोग होते हैं, जो डिप्राइव्ड पीपल होते हैं या पुअर पीपल होते हैं, इन नॉर्मल वर्ड्स इफ आई एक्सप्लेन यू, जो पुअर पीपल होते हैं उनकी आवाज़ को कौन सुनता है? नो बडी, है ना। इवन इफ दे आर इन ट्रबल, मोस्टली मोर ओवर नाउ वी कैन सी कि हाँ चलो गवर्नमेंट दे आर अडॉप्टिंग वेरियस स्कीम्स फॉर दैम, बट इन जनरल इफ आई से उनकी कोई आवाज़ नहीं होती है। इवन इफ दे आर स्पीकिंग, नो बडी इज लिसनिंग टू देम, है ना। सो दैट इज़ वाई ही सेज द साउंड ऑफ साइलेंस। साइलेंस का साउंड नहीं होता है ना। आप जनरली आप अगर आप इमेजिन करो साइलेंस का कैसे साउंड होता है, बट ये जो साइलेंस है, ये जो साउंड ऑफ साइलेंस मेंशन किया, वो उन लोगों का जिनकी आवाज़ को कोई सुनता ही नहीं है, इसलिए बता दिया कि उनकी साउंड ऑफ साइलेंस। द क्राई ऑफ इनोसेंस, इनोसेंस का जो वो रोते हैं, बिकॉज दे आर सफरिंग, बिकॉज दे आर facing very difficulties, so that is why the cry of those innocent people, just because they are poor, ठीक है। the only problem is they are poor, they don't have money, they don't have rich, they don't have sources to live their lives fully as we all do. so उनकी जो क्राई है, इनोसेंस की जो क्राई है, एंड द फेस ऑफ इनविजिबिलिटी, एंड द फेस ऑफ इनविजिबिलिटी मीन्स अननोटिस सफरिंग ऑफ द पुअर एंड इनोसेंट। as I told you कि साउंड ऑफ साइलेंस, लोग जो पुअर पीपल की आवाज़ कोई नहीं सुनता, पुअर पीपल को देखता भी कौन है ना। द फेस ऑफ इनविजिबिलिटी, फेस तो है बट इनविजिबल है। यू अंडरस्टैंड दिस? सो हियर ही सेज कि अननोटिस्ड होते हैं वो पुअर पीपल, बिकॉज उनके फेस को, उनको खुद को, उनको नोटिस ही नहीं किया जाता है। सो दैट इज़ वाई ही इज़ रिप्रेजेंटिंग साउंड ऑफ साइलेंस, द क्राई ऑफ इनोसेंस एंड द फेस ऑफ इनविजिबिलिटी। दैट इज़ वाई ही सेज कि इन लोगों को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, ठीक है। ही इज़ देयर रिसीविंग द नोबेल पीस प्राइज, ठीक है, वहाँ वो लेक्चर दे रहा है, एंड वहाँ पे ही इज़ मैंशनिंग एंड रिप्रेजेंटिंग ऑल दोज पुअर पीपल ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। डिप्राइव्ड लोगों के लिए ही स्पीकिंग एट देयर एंड वाइल गिविंग अ स्पीच इन द सेरेमनी। देन ही सेज ही इज़ रिप्रेजेंटिंग मिलियंस ऑफ दोज चिल्ड्रन, ठीक है, काफ़ी सारे मिलियंस ऑफ चिल्ड्रन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हु आर लेफ्ट बिहाइंड, जिनको पीछे छोड़ दिए हैं, देखा ही नहीं जा रहा, ना उनकी आवाज़ें सुनी जा रही हैं। उन बच्चों को, उन मिलियंस ऑफ बच्चों को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, एंड इन सभी के वजह से दैट इज़ वाई आई हैव केप्ट एन एम्प्टी चेयर हियर एज अ रिमाइंडर, ठीक है। दैट इज़ वाई उन्होंने क्या किया है, जहाँ पे वो गए हैं इन द डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी, ही हैज़ केप्ट अ चेयर, उनके साइड में जो चेयर है, आई कांट टेल यू दैट ऑन द स्टेज और in the general, he has kept a chair wherever he is sitting, he has kept an empty chair beside or near to him, to एज अ रिमाइंडर, ताकि उनको याद रहे कि ये जो चेयर है, जो एम्प्टी चेयर है, वो सारे बच्चों को जो पीछे रह गए हैं, या सारे साउंड ऑफ साइलेंस, द पीपल हु आर डिप्राइव्ड, टू देम ही इज़ रिप्रेजेंटिंग। ओके, सो दैट इज़ वाई उन्होंने उनके साइड में एक एम्प्टी चेयर रखा हुआ है। Next he says, I have come here only to share the voices and dreams of our children, because they are all our children. Gesture to everyone in the audience, it is there in the brackets. And then, I have looked into their frightened and exhausted eyes, I have held their injured bodies and felt their broken spirits. In this he says कि मैं यहाँ पे आया हूँ to share the voices and dreams of our children, ठीक है, इन बच्चों के, आर चिल्ड्रन ही सेज, ठीक है, ही सेज कि मैं मेरे बच्चों के जो वॉइसेस हैं, जो सपने हैं, उनको यहाँ पे शेयर करने आया हूँ, बिकॉज ही सेज कि वो सारे हमारे बच्चे हैं, दे आर ऑल आर चिल्ड्रन, ठीक है। ये सिर्फ उनके ही नहीं, जो भी वहाँ पे थे ऑडियंस में, उनको भी देखते हुए वो कहते हैं कि ये सारे बच्चे, इनकी जो वॉइस है, इनकी जो आवाज़ है, इनकी जो ड्रीम्स हैं, जिनको मैं अभी शेयर करने वाला हूँ, वो इसीलिए करना इम्पॉर्टेंट है बिकॉज ये सारे हमारे बच्चे हैं, आपके और मेरे बच्चे हैं। ही शोज़, ही
he gives a gesture to everyone in the audience. It is there in the brackets, है ना. So he is telling to the audience also कि आपके और मेरे, हम सबके ये बच्चे हैं, इसीलिए इनकी आवाज़ें सुनना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एंड ही सेज कि मैंने उनके आँखों में, छोटे छोटे बच्चों के आँखों में, ही हैज़ सीन लुकड इन टू देयर फ्राइटेंड एंड एग्जॉस्टेड आइज. ठीक है, उनके फेस में, उनके आँखों में वो डर दिखता है, एग्जॉशन दिखता है. मीन्स फ्राइटेंड, because they were afraid, exhausted eyes because they were very tired. ठीक है, and I have held their injured bodies and felt their broken spirits. ठीक है, तो whenever he has met with a child or had a moment with the child, so he has seen the child was frightened, he was tired, and he has also seen some children, he has also took hold of those children whose body were injured, and or else, and they have and felt their broken spirits. Felt their broken spirits means they were broke from inside. वो अंदर से ही मतलब उनकी सारी इच्छाएं या होप्स बोल सकते हैं, वो भी मर चुके थे. होता है ना, जब आपको पता है, आप बचपन से देखते हैं, छोटे बच्चे ही हैं बट वो देख रहे हैं कि नो बडी इज़ लिसनिंग टू अस, नो बडी इज़ हेल्पिंग अस. सो आफ्टर अ सर्टन स्पैन ऑफ टाइम योर स्पिरिट ऑल्सो गेट्स ब्रोक, है ना. यू डोंट हैव एनी होप that things will go well. So that is why it is mentioned broken spirits को भी फील किया है कि वो अंदर से ही, मतलब ऐसा नहीं है कि physically they are tired because of the work, because of the slavery, or because of the difficulties or crisis which they were facing, but because from inside also they have given up. Okay, so he has looked those gestures of those little children's. Next, he says, 20 years ago, in the foothills of the Himalayas, I met a small, skinny child laborer. He asked me, is the world so poor that it cannot give me a toy and a book instead of forcing me to take a gun or a tool? ठीक है, तो हियर ही सेज कि 20 years ago एक फूट हिल्स में, हिमालयाज़ के फूट हिल में, ही सॉ कि देयर वाज एक छोटा सा बच्चा था, वो स्किनी था, थिन था, पतला था, चाइल्ड लेबरर था. Okay, child laborer means a child who is working as a labor, a child who is working. And वो बच्चा पूछता है कि इज़ द वर्ल्ड सो पुअर, क्या ये वर्ल्ड इतनी गरीब है कि ये मुझे एक खिलौना नहीं दे सकती इंस्टेड ऑफ अ बुक. ठीक है, बुक देना चाहिए छोटे बच्चों को, सॉरी, टॉय एंड अ बुक, बुक एंड टॉय देना चाहिए इस एज में बच्चों को, बट उल्टा उस बच्चों को फोर्स किया जा रहा है एंड उसको हाथ में गन दिया जा रहा है या टूल्स दिए जा रहे हैं सो दैट ही कैड वर्क, है ना. सो ही आज कि ये दुनिया इतनी गरीब है कि ये मुझे खिलौने नहीं दे सकती है, खेलने के लिए, पढ़ने के लिए बुक नहीं दे सकती है, बट मुझे फोर्स करती है कि मैं हाथ में गन लूँ या तो टूल्स लूँ या इक्विपमेंट्स लूँ और काम करूँ. Next, he says, I met with a Sudanese child soldier. He was kidnapped by an extremist militia. As his first training lesson, he was forced to kill his friends and family. He asked me, what is my fault? Okay, next he shares a story. He's sharing small glimpses of this experiences which he has experienced. He shares that he next met Sudanese child labor. ठीक है, सुडान ये भी कंट्री है इन नॉर्थ अफ्रीका. एंड वो बच्चे को किडनैप किया था बाय एन एक्सट्रीमिस्ट मिलिटिया. ठीक है, एक्सट्रीमिस्ट इज अ पर्सन who who he's he's the person who's very violent. ठीक है, who's a very violent military person. ठीक है, अब a soldier we can say who is very violent, a violent soldier. ठीक है, एंड या तो इलीगल भी, इलीगल अ पर्सन भी हो सकता है. सो एनी पर्सन हु इज़, नो मिलिटिया वर्ड मेंशन किया है, सो इट ही इज़ अ पर्सन फ्रॉम मिलिट्री बट ही इज़ अ वॉयलेंट सोल्जर. ठीक है, वॉयलेंट सोल्जर आप मेंशन कर लो, यू कैन राइट द मीनिंग वॉयलेंट सोल्जर. सो ही वॉज एन एक्सट्रीमिस्ट मिलिटिया. उसने किडनैप किया था एक छोटे से बच्चे को, एंड उस बच्चे को एज इज फर्स्ट ट्रेनिंग, एज अ पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग, ठीक है, तो शायद वो उनको उनके ट्रूप्स में ज्वाइन करवाना चाहते थे या ट्रूप्स में लेना चाहते थे. सो दैट इज़ वाई, एज वी ऑल नो दैट अगर आपको कहीं ज्वाइन करना है, मिलिट्री ज्वाइन करनी है, तो यू विल गेट ट्रेनिंग. सो बट एक्सट्रीमिस्ट मिलिटिया, दैट इज़ वाई इलीगल हो सकता है कि इलीगल मिलिट्री सोल्जर हो सकता है, मिलिटेंट.
ठीक है, मिलिटेंट भी हो सकता है, आई एम नॉट अ वेरी श्योर अबाउट इट, बट अ पर्सन हु इज़ अ वेरी वायलेंट, दैट इज़ वेरी, दैट आई एम श्योर दैट अ पर्सन हु इज़ वायलेंट, अ सोल्जर हु इज़ वायलेंट, उन्होंने इस बच्चे को किडनैप किया, उस बच्चे को एज अ पार्ट ऑफ हिज ट्रेनिंग, फर्स्ट ट्रेनिंग को, एज अ पार्ट ऑफ हिज फर्स्ट ट्रेनिंग उसने इस बच्चे को फोर्स किया कि ये आपकी ट्रेनिंग है। एज वी ऑल नो कि मिलिट्री की ट्रेनिंग बहुत ज़्यादा हार्ड होती है, ठीक है, बहुत ज़्यादा हार्ड होती है। हमने इससे पहले चैप्टर में भी पढ़ा था अर्जुन सिंह जी के बारे में, जब हम डिस्कस कर रहे थे तब भी पता है कि ट्रेनिंग बहुत होती है। सो एंड इन जनरल ऑल्सो वी माइट हैव हर्ड कि ट्रेनिंग्स होती हैं एंड टफ ट्रेनिंग्स होती है टू मेक द सोल्जर्स वेरी स्ट्रॉन्ग एंड टू मेक देम वेरी, यू नो, to make them very fully equipped, distinguished. So that is why ट्रेनिंग दी जाती है काफ़ी ज़्यादा। तो एज अ पार्ट ऑफ हिज ट्रेनिंग वो छोटे से बच्चे को फर्स्ट ट्रेनिंग के तौर पे उसे फोर्स किया कि वो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को मार दे, किल कर दे। ही वॉज फोर्स्ड टू किल हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली। Okay, so it is a very cruel thing. I would say that it was a very cruel thing to do that. A child, to force a child to kill his own friends and family. And he asked सत्यार्थी जी, कैलाश जी, दैट व्हाट इज़ माई फॉल्ट, ठीक है, मेरी गलती क्या थी कि मुझे किडनैप भी किया गया एंड मुझे मेरी ट्रेनिंग के लिए मेरे ही फ्रेंड्स एंड फैमिली को मारने के लिए कहा गया एंड मारने पर मजबूर किया। सो ही आस्क्ड व्हाट इज़ माई फॉल्ट हियर। He says next, friends, Satyarthi ji says, friends, all the great religions teach us to care for our children. Jesus said, let the children come to me, do not hinder them, for the kingdom of God belongs to them. The Holy Quran says, kill not your children because of poverty. ठीक है, here he mentions about the religioustic aspects. He says कि Christianity में Jesus says कि बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को मेरे पास आने दो, डोंट स्टॉप देम, डो नॉट हिंडर देम, ठीक है। वाई? बिकॉज किंगडम ऑफ गॉड, गॉड की जो किंगडम है वो इन छोटे छोटे बच्चों के लिए ही है। एंड द होली कुरान ऑल्सो सेज कि किल नॉट योर चिल्ड्रन, अपने बच्चों को ना मारिए बिकॉज ऑफ पुअर्टी, बिकॉज ऑफ गरीबी, डोंट किल योर चिल्ड्रन। होली कुरान ऑल्सो सेज दिस थिंग। Okay, so next he says, Satyarthi ji, friends, there is no greater violence than to deny the dreams of our children. Therefore, I refuse to accept that all the temples and mosques and churches and prayer houses have no place for the dreams of our children. ठीक है, here he says कि there is no greater violence, brutality, there is no greater brutality, no greater cruelty, ठीक है, दैन टू डिनाई द ड्रीम्स ऑफ अर चिल्ड्रन। ठीक है, दुनिया में सबसे क्रूअल चीज़ यही हो सकती है जब आप छोटे छोटे बच्चों के सपने को तोड़ देते हो या इग्नोर करते हो या अगेंस्ट जाते हो, तो ये सबसे बड़ी क्रूअल्टी होगी। इसी वजह से ऑल्सो ही सेज देयरफॉर वो रिफ्यूज़ करते हैं, वो रिजेक्ट करते हैं कि टेम्पल्स एंड मॉस्क हो या चर्चेस हो या प्रेयर हाउसेस हो, उन वहाँ पे इन बच्चों के ड्रीम्स की कोई जगह नहीं है। ऐसा अगर कहते हैं तो वो इस चीज़ को रिजेक्ट करते हैं, वो इस चीज़ को अपोज करते हैं। ही रिफ्यूज़ टू एक्सेप्ट, ठीक है, टेम्पल्स हो, मॉस्क हो, चर्चेस हो या प्रेयर हाउसेस हो, यहाँ पे अगर बोला जाता है कि यहाँ पे छोटे छोटे बच्चों के सपनों की कोई जगह नहीं है, तो ही रिफ्यूज़, ही अपोज दो दैट आइडिया, ही अपोज दैट नॉलेज। ही सेज कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये सारे जगह में, होली प्लेसेस में बच्चों की रिस्पेक्ट ही नहीं की जाती हो या बच्चों के ड्रीम्स को नहीं एक्सेप्ट किया जाता हो। he is not accepting these things. So he also says next, I refuse to accept that the world is so poor when just 1 week of global military expenditure can bring all the children to classrooms. ठीक है, he also says कि मैं इस चीज़ के भी रिजेक्ट करता हूँ दैट द वर्ल्ड, हमारे जो पूरी जो दुनिया है वो इतनी गरीब है कि अगर एक हफ्ते की जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ग्लोबली जो मिलिट्रीज़ हैं उनके एक्सपेंडिचर्स होते हैं, है ना, तो उनके एक्सपेंडिचर्स, उनके 1 वीक की जो एक्सपेंडिचर है वो पूरे दुनिया के चिल्ड्रन को क्लासरूम तक लेकर जा सकती है। मतलब एक हफ्ते का जो मिलिट्री का खर्चा होता है, पूरे ग्लोबल मिलिट्री का खर्चा, वो पूरे दुनिया के बच्चों को क्लासरूम्स, मतलब उनको एजुकेशन प्रोवाइड कर सकती हैं। तो ही
रिजेक्ट्स कि वर्ल्ड हमारी गरीब है, ठीक है, गरीब हो ही नहीं सकती ना जब सिर्फ मिलिट्री के एक हफ्ते का खर्चा आपको छोटे बच्चों के एजुकेशन में डालना है। तो ही सेज कि वर्ल्ड इज नॉट पुअर, ही इज नॉट एक्सेप्टिंग कि वर्ल्ड पुअर है। ओके, नेक्स्ट ही सेज I refuse to accept that all the laws and constitutions police and judges are unable to protect our children. ठीक है, next he what rejects, he rejects to accept, he refuse to accept कि जो हमारे laws हैं हमारे country के हों या world के हों, constitution में जो rights होती है, हमारे जो पुलिस पर्सनल्स होते हैं या जजेस होते हैं जो कोर्ट में बैठते हैं, जो जो जजमेंट पास करते हैं, वो हमारे चिल्ड्रंस को बचा नहीं सकते। वो इसे भी इस चीज़ को भी एक्सेप्ट नहीं करते बिकॉज ये सारे चीज़ें इनका काम क्या है, लॉज हो कॉन्स्टिट्यूशंस हो पुलिस हो जजेस हो, ठीक है, एवरीवेयर लॉज आर देयर टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ चिल्ड्रन। कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज है, पुलिस का काम है जजेस को करेक्ट जजमेंट्स देने हैं। सो दीज पीपल कैन प्रोटेक्ट आवर चिल्ड्रन। सो ही रिफ्यूज़ कि अगर ये नहीं कर पा रहे हैं तो ही इज़ रिजेक्टिंग दैट आइडिया। Next, he says, I refuse to accept that the shackles of slavery can ever be stronger than the quest for freedom. I refuse to accept here. He says कि now I refuse to accept the shackles of slavery. Shackles of slavery means chains of slavery. ठीक है, the chains that bound slavery. Chains जो आपको जो कनेक्ट किए रखता है, जोड़े रखता है या बांधे रखता है स्लेवरी से, can ever be stronger than the quest for freedom. Quest means search for freedom. ठीक है, सो आपकी जो फ्रीडम, आप फ्रीडम की जो चाह है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होती है। भले ही आपको स्लेवरी के आप चेन्स में बंधे हुए हो, बट तब भी आपकी जो चाह है कि फ्रीडम चाहिए मुझे, जो व्हेन यू सर्च फॉर फ्रीडम, दैट फीलिंग इज़ मोर स्ट्रॉन्गर दैन द चेन्स विच इज़ बाउंडेड इन द स्लेवरी. I refuse to accept here. He now says here, I refuse to accept here. All these things which he mentions here. ठीक है. Now next he says, very beautiful things he says. His only aim in life is that every child is free to be a child. ठीक है, उनकी aim क्या है, वो life में क्यों जी रहे हैं, ठीक है, each and every one of us have certain dreams है ना, but this chapter is very important. This is an original chapter, a real chapter. This is not just a story made by any poet or anyone. This is a real story, share real experiences of Kailash Satyarthi ji. So he's still there. He has recently written a book. I forgot the name. He's a very great person. He says, you can just imagine his aim in life is what we have our aims in life, but his aims in life is that कि every child is free to be a child. हर एक बच्चे को चाइल्ड रहने दो। हम क्या करते हैं, बच्चों को चाइल्ड लेबर हो रहा है, बच्चों से काम करवा रहे हैं, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल नहीं भेजा जा रहा है, तो वो इस चीज़ को रिफ्यूज़ करते हैं, इस आइडिया को रिजेक्ट करते हैं। वो बोलते हैं कि सारे बच्चों को फ्री होना चाहिए, वो उनको चाइल्ड ही रहने दो, ऐसा ही सेज फ्री। these are the points which he mentions. फ्री, बच्चों को फ्री किससे होना है, फ्री टू ग्रो एंड डेवलप, ठीक है। उनको फ्रीली ग्रो होने दो, उनको फ्रीली डेवलप होने दो, फ्री टू ईट स्लीप एंड सी डे लाइट। उनको जब मन करे सोने दो, खाने दो, डे लाइट देखने दो, है ना। देर आर मैनी चिल्ड्रंस हु डोंट इवन सी डे लाइट्स। वो कॉन्स्टेंटली कहीं अंदर किसी अंधेरे से रूम में काम कर रहे हैं, या इलीगल काम या लीगल काम। दे आर नॉट इवन अलाउड टू सी द डे लाइट ऑल्सो। दे आर इन सच क्राइसिस और सच ट्रेजेडीज वी कैन से। they are free to laugh and cry, है ना। as we all know, we have laughed so much in our childhood days, we still do. We can cry when we feel bad, but some children are there, they are not even they don't have that freedom. वो रो नहीं सकते, वो हंस नहीं सकते, उनको उतनी फ्रीडम भी नहीं है। फ्री टू प्ले एंड लर्न, ठीक है ना। ये छोटे छोटे बच्चों को से काम कराया जा रहा है, इलीगली काम कराया जा रहा है, तो उन्हें चिल्ड्रंस का राइट है दैट दे शुड प्ले, दे शुड लर्न एट दिस स्टेज, बट दे आर नॉट डूइंग दैट, दे आर नॉट बीन अलाउड टू डू दैट। नेक्स्ट इज फ्री टू गो टू स्कूल, ठीक है। नेक्स्ट इसे स्कूल जाने को उनको फ्रीडम मिलनी चाहिए। एंड अबव ऑल, इन सबके ऊपर फ्री टू ड्रीम, ठीक है। लेट देम बी फ्री टू ड्रीम व्हाट दे वांटेड टू। सपने देखना है, उनकी मर्जी, उन्हें जो भी सपने देखना है, बट उनको फ्रीडम दी जाए कि वो सपने देखें। नेक्स्ट
I have the privilege of working with many courageous people who have the same aim. We have never given up against any threat or attack, and we never will. ठीक है, सो नाउ ही इज़ वेरी प्रिवलेज, ही इज़ वेरी हॉनर्ड दैट ही इज़ वर्किंग विद पीपल, उनके जो साथ में काम करते हैं लोग, सत्यार्थी जी के साथ में, कैलाश जी के साथ में, ही सेज कि उनका भी सेम एम है. काफ़ी लोग हैं जिनके ऐसे एम्स होते हैं, गुड कॉज के लिए वो काम करना चाहते हैं. ही ऑल्सो सेज कि हम सब ने कभी भी किसी थ्रेट या अटैक के अगेंस्ट झुके नहीं हैं. ठीक है, वी हैव नेवर गिवन अप. थ्रेट्स आए थे, धमकियाँ आई थी, अटैक्स किए गए हैं, ओके, बट स्टिल इन्होंने कभी भी गिव अप नहीं किया. एंड ये कहते हैं कि हम कभी गिव अप भी नहीं करेंगे. We have made progress in the last couple of decades. We have reduced the number of out of school children by half. We have reduced the number of child laborers by a third. We have reduced child mortality and malnutrition, and we have prevented millions of child deaths. ठीक है, ये सेज कि हमने प्रोग्रेस किया, हमारा जो एम है उसमें हमने प्रोग्रेस किया है इन कपल ऑफ डिकेड्स. ऐसा नहीं कि जल्दी हुआ है प्रोग्रेस. ही मेंशंस कि कपल ऑफ डिकेड्स में, काफ़ी डिकेड्स में हमने प्रोग्रेस किया है. हमने आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन, जो नंबर होता है आउट ऑफ स्कूल चिल्ड्रन का, उसको हाफ कर दिया है. फॉर एग्जांपल 100 बच्चे आउट ऑफ स्कूल रहते हैं तो हाफ कर दिया, 50 बच्चे पढ़ रहे हैं. एंड आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, ओके. सो देयर वर न्यूमरस, सो हाफ चिल्ड्रन, ऑलमोस्ट thousands of children, if we could assume that they thousands or lakhs also, we don't know the data here. So thousands of children or many a children's now they are able to go to school. Reduce the number of child laborers by a third. ठीक है, there were many child laborers, तो उनको भी reduce किया by a third. And reduce child mortality rate, child की जो mortality rate होती है, death rate होती है बच्चों की, उनको भी कम किया है. Malnutrition, okay, the children who were malnutritioned because of lack of proper nutrition was not provided. uh, Nutrition was not provided, that is why they were malnutritioned, and we have prevented millions of child deaths. ठीक है, millions, you can see millions are mentioned here, तो बहुत millions of बच्चों को मरने से बचाया था इन्होंने, इन सब ने. बट लेट अस मेक नो मिस्टेक, ग्रेट चैलेंजेस स्टिल रिमेन. ठीक है, ही सेज हियर कि अब हमें मिस्टेक नहीं करनी, आगे कोई मिस्टेक नहीं करनी. ग्रेट चैलेंजेस, बिग चैलेंजेस अभी भी आएंगे, अभी भी हैं और आते रहेंगे. फ्रेंड्स, द बिगेस्ट चैलेंज और बिगेस्ट क्राइसिस नॉकिंग ऑन द डोर्स ऑफ ह्यूमन काइंड इज़ फियर एंड इंटॉलरेंस. ही सेज कि जो सबसे बड़ा चैलेंज है और सबसे बड़ा क्राइसिस है, जब हम ह्यूमन काइंड के डोर को नॉक करते हैं, ह्यूमन काइंड मीन्स इंसानियत के जब डोर को नॉक करते हैं, तो सबसे ज़्यादा चैलेंज है फियर एंड इंटॉलरेंस. ठीक है, डर एंड इंटॉलरेंस. ठीक है, next he says we have utterly failed our children in imparting an education that gives the meaning and objective of life, an education that gives a sense of global citizenship among the youth. ठीक है, ही सेज कि हम अटरली फेल हुए हैं, कंप्लीटली फेल हुए हैं. ठीक है, अटरली मीन्स वी हैव कम्प्लीटली फेल्ड आवर चिल्ड्रन, हमने हमारे बच्चों को कम्प्लीटली फेल किया है. किस चीज़ में? इन इम्पार्टिंग एन एजुकेशन, इन गिविंग. इम्पार्टिंग मीन्स गिविंग. इन गिविंग एन एजुकेशन, एजुकेशन देने में हम कम्प्लीटली फेल हो गए हैं. एन एजुकेशन, जो एजुकेशन जो मीनिंग एंड ऑब्जेक्टिव देती है लाइफ का ना, जब आपको एजुकेशन मिलती है तब आपके लाइफ में एक मीनिंग आता है, आपको पता है कि आपकी लाइफ कहाँ है. एंड ऑब्जेक्टिव होता है लाइफ का, एम बनाते हो आप लाइफ में. सो वो सब देने में हम फेल हो गए हैं, ऐसा ही सेज. एंड देन ही सेज एन एजुकेशन, वो क्या देती है? अ सेंस ऑफ ग्लोबल सिटीजनशिप अमंग द यूथ. ग्लोबल सिटीजनशिप मीन्स ग्लोबल ह्यूमैनिटी अमंग द यूथ. ठीक है, जब एजुकेशन मिलता है तभी आपको पता चलता है ह्यूमैनिटी क्या होती है. तो ही सेज यूथ में जो फीलिंग होनी चाहिए ग्लोबल सिटीजनशिप की, ह्यूमैनिटी की, उस फीलिंग को देने में हम हार गए हैं. वी हैव फेल्ड. Next he says, I am afraid that the day is not very far away when the cumulative result of this failure will culminate in an unprecedented violence, and that will be suicidal for humankind. नेक्स्ट ही शेयर्स अबाउट इज अफ्रेड दैट ही सेज कि वो दिन दूर नहीं है जब ये जो रिजल्ट है, क्यूमुलेटिव मीन्स इंक्रीजिंग. ठीक है, क्यूमुलेटिव मीन्स इंक्रीजिंग रिजल्ट ऑफ दिस फेलियर, ये जो फेल हुए हैं हम बच्चों को एजुकेशन देने में, उस वजह से विल कल्मिनेट इन एन अनप्रेसिडेंटेड वायलेंस. ठीक है, विल कल्मिनेट मीन्स विल रीच द हाइएस्ट लेवल. ठीक है,
Culminate means reaching. In an unprecedented means never known before or never done before violence. ठीक है, इन हमने एजुकेशन नहीं दी है बच्चों में, तो इस वजह से हम एक ऐसी जगह पहुंच जाएंगे जहाँ पे हमें ऐसी वायलेंस देखनी पड़ेगी जो ना ही कभी हमने सुनी है, ना ही कभी किसी ने ऐसी वायलेंस की है। ठीक है, एजुकेशन इज़ द की, एजुकेशन इज़ द की ऑफ लाइफ, मीनिंग ऑफ लाइफ। सो आप उन्हें एजुकेशन ही नहीं दिए तो बच्चों को पता भी नहीं है क्या सही है क्या गलत है। इस वजह से आप क्या देखोगे कि एक ऐसा वॉयलेंस हो सकता है, ऐसी क्रूअल्टी वर्ल्ड में हो सकती है जो ना कभी सुनी है ना कभी हुई है। ठीक है, कल्मिनेट मीन्स रीच एंड अनप्रेसिडेंटेड मीन्स नेवर नोन बिफोर और नेवर डन बिफोर। ठीक है, पॉज द वीडियो एंड राइट दिस मीनिंग्स. Next he says, in this video we'll just finish part 1, huh? Three more small paragraphs are left and then I'll stop the video. In the next parts will be continued in next videos. Next he says, right security, and that will be suicidal for humankind, the last line. Okay, तो ये जब never known before and never heard before violence जब create होगी, जब rise होगी, तो that will be suicidal for humankind. ठीक है, इंसानियत के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा. नेक्स्ट इज, सी दिस मच वी आर लेफ्ट विथ, राइट सिक्योरिटी होप कैन ओनली बी रिस्टोर्ड थ्रू एजुकेशन. ठीक है, तो राइट्स जो होती है, ह्यूमन राइट्स जो होती हैं, सिक्योरिटी जो होती है, होप जो होती है, इट कैन ओनली बी सेव्ड थ्रू एजुकेशन. एजुकेशन है तो एजुकेशन होगी, इंफॉर्मेशन होगी, नॉलेज होगी, तो आप राइट्स को बचा सकते हो, आप सिक्योर्ड रह सकते हो, एंड होप्स, you can just make hopes in lives. Next he says, young people like Malala, I've started calling her my daughter Malala. So not just Malala, so my daughter Malala and other daughters including Kainat, in fact 2 Kainats and Shazia and the daughters from Africa and from all over the world, they are rising up and choosing peace over violence, tolerance over extremism and courage over fear. ठीक है, ही सेज, ही टॉक्स अबाउट मलाला. मैंने बताया आपको मलाला कौन थी. शी इज़ अ यंग सोशल एक्टिविस्ट हु वर्क्स फॉर फीमेल एजुकेशन एंड अ लॉट मोर. सो ही सेज कि मैं मलाला को अपनी डॉटर मानने लगा हूँ, एंड सिर्फ मलाला को ही नहीं, इनफैक्ट अदर डॉटर्स आर ऑल्सो देयर, इनफैक्ट कायनात्स एंड 2 कायनात्स हैं. ठीक है, मतलब कायनात ही नाम के 2 होंगे, एंड शाजिया एंड द डॉटर्स फ्रॉम अफ्रीका, अफ्रीका के बच्चियाँ, एंड ऑल ओवर द वर्ल्ड. ठीक है, ये सारी लड़कियों को, छोटी छोटी को मैं अपनी बेटी मानता हूँ. दे एंड ये सभी क्या हैं, दे आर राइजिंग अप, वो अभी उठ रहे हैं, वो खड़े हो रहे हैं, एंड वो चूज़ कर रहे हैं पीस ओवर वायलेंस. ठीक है, पीस चूज़ करते हैं वायलेंस के ऊपर, टॉलरेंस चूज़ करते हैं ओवर एक्सट्रीमिज्म. एक्सट्रीमिज्म मीन्स एक्सट्रीम वायलेंस हो, एक्सट्रीम ब्रूटैलिटी के ऊपर, मतलब कुछ भी चीज़ें सहना जो होगा, एक्सट्रीमिज्म बुरी चीज़ें, उनके ऊपर वो टॉलरेंस चूज़ करते हैं, सहना चूज़ करते हैं, एंड करेज ओवर फियर. ठीक है, डर के आगे वो हिम्मत को चूज़ करते हैं. Next he says, the solutions are emerging, but these solutions cannot be found in the deliberations and conferences alone, and cannot be found in prescriptions from a distance. They lie in small groups and local organizations and individuals who are confronting with the problem every day. Even if they remain unacknowledged, unrecognized and unknown to the world, the solution are with them. ठीक है, now he says कि जो solutions हैं ये problems की are emerging, ये जो solutions हैं वो grow हो रही है. ठीक है, emerging means growing. The solutions are growing nowadays, but ये जो solutions हैं, it cannot be found in the deliberations. Deliberations means discussions. Okay, so he says कि ये जो solutions हैं हमारे problems की, इनको conference, ये जो conference है, इनके डिस्कशन में इनके सॉल्यूशंस को आप नहीं ढूंढ सकते हो. ठीक है, ना ही दूर से आप प्रिस्क्रिप्शंस दे सकते हो. प्रिस्क्रिप्शंस मीन्स एडवाइस. ठीक है, तो ना ही इनके सॉल्यूशंस आपको डिस्कशन कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करोगे, कॉन्फ्रेंस में डिस्कस करोगे, फिर प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, फिर सॉल्यूशन निकालोगे, ऐसे आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा. ही सेज, ही ऑल्सो सेज कि दूर रह के एडवाइस दे रहे हो कि ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए, वैसे भी आप सॉल्यूशंस इन प्रॉब्लम्स के नहीं दे सकते हो. सॉल्यूशंस कहाँ हैं? ही सेज कि सॉल्यूशंस lie in small groups and local organizations and individuals. ठीक है, ये
सॉल्यूशंस इन लोगों के पास है, जो छोटे छोटे ग्रुप्स हैं, जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस है, जो उस जगह में रह रहे हैं, जो इंडिविजुअल्स जो उस प्लेस में रह रहे हैं जहाँ पे प्रॉब्लम्स फेस करते हैं वो, जहाँ पे क्राइसिस फेस करते हैं वो, एंड जो लोग वो आर कन्फ्रंटिंग, कन्फ्रंटिंग मीन्स फेसिंग एंड अटैकिंग, ठीक है, जो ये प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं एवरीडे, जो भी प्रॉब्लम्स हमने अभी डिस्कस किया या कल कैलाश जी ने मेंशन किया, वो प्रॉब्लम्स जो जो इंडिविजुअल्स खुद सहते हैं, जो फेस करते हैं, उनके पास उनका सॉल्यूशन है, ठीक है। उनको पता है कि उन्होंने कौन से प्रॉब्लम्स है एंड इसको कैसे कैसे वो उनसे बाहर निकल सकते हैं। तो ही सेज कि बड़े बड़े कॉन्फ्रेंसेस के मीटिंग्स में नहीं होने वाला है सॉल्यूशन सॉल्व, ये उन लोगों के पास सॉल्यूशन है जो इंडिविजुअल्स रह रहे हैं वहाँ पे और ये जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, ठीक है। एंड एवरी डे जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं उन लोगों के पास है, भले ही वो लोग ऐसे हैं जो अनएक्नॉलेज्ड है। अनएक्नॉलेज मीन्स उनको कभी भी एक्नॉलेजमेंट नहीं दी गई है, उनके एग्जिस्टेंस को भी नहीं देखा जाता है, वो है भी या नहीं, दे डोंट, पीपल डोंट इवन नोटिस देम, अनरिकॉग्नाइज, दे डोंट इवन सी देम, एंड अननोन, दे आर अननोन टू द पीपल, टू द वर्ल्ड, ठीक है। इन लोगों के पास द सॉल्यूशंस आर विद देम, ठीक है, द प्रॉब्लम सॉल्यूशंस आर विद दीज पीपल हु आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स, हु आर फेसिंग द ट्रबल्स, ठीक है। हियर part 1 is ended, so the video has been so long, so part 2 and part 3 will be discussed in the next videos. So thank you for listening. I hope you have make a note of the meanings. If not, if still you are confused with certain meanings, make a note of those words, make a note of those words, and in my class, online classes, you can ask me. Thank you so much.